welcome back to my channel. This is me Dania and this video is going to be the Q&A video, and also I want to tell you guys that the videos will be coming just once a week. I'm sorry about that, but because I have a lot of things going on right now. मैंने एक तो annual day में participate कर लिया है in school and that has a lot of work, and second of all I have to manage my novel too and then all the studies. So I have really less time to shoot videos, edit them and make the thumbnails. I hope you guys don't mind, but now videos will be only be coming on Sundays. But let's get into this video. I mean, who doesn't? Yes, I do. I still do. And I think I will keep doing that. What exactly style? If you're asking about the person I am a mix of tomboy and a girly girl. Yeah, that's it. And I like pastel aesthetic. Cat person forever. On this channel, my favorite video would be the 11th grade one, because I don't know, I just like the vibe of it. It's like really good. I edited it nicely. I feel good about it. So yeah, that's my favorite video. So I don't listen to music a lot, and my favorite genre just keeps changing. Sometimes it's pop, sometimes it's soft, and that, I don't really know what kind of genre I like. It just, my favorite song keeps changing, and whatever song it is, then it's that genre. So I guess my favorite singer would be Taylor Swift, and then Billie Eilish and Olivia Rodrigo, and in band Imaginary Dragons. But as I mentioned, I don't listen to music a lot, so I don't know much artists out there. No, I do not usually watch K-dramas. I have watched 2 or 3, I guess. All of Us Are Dead and Squid Game, and Squid Game is my favorite one because it's thrilling, it's horror and all that vibes keep up, so that's why. But usually I do not watch K-dramas or C-dramas. So board exams were, देखो, quite easy. The thing is कि देखो, अगर तुम पढ़कर जाओगे तो तुम्हें पेपर बहुत आसान लगेगा. दैट इज़ अ यूनिवर्सल थिंग. तुम पढ़कर जाओगे सो द एग्जाम विल बी ईजी. अगर तुम नहीं पढ़ के जाओगे इट विल बी टफ. दैट इज़ द थिंग. तो अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी है एंड अच्छी से मतलब नहीं तुम पूरी रात मतलब काफ़ी पढ़ो, इफ़ यू आर स्टडिंग ऑनेस्टली, if you're honest with yourself and you're studying consistently, then it's gonna be pretty easy. Subject tough for me, I would say Urdu, because I had just 1 day gap for Urdu and I had a lot to memorize in that. Urdu we have to remember तब सारे writers के बारे में हमें याद करना था, and the sad part, exam में वो आया भी but there was a lot to memorize in Urdu. That's why it felt tough for me. Otherwise, I don't think any paper is tough for me. Maybe maths a little bit. 10th is easy. Yes, it is. I know I would not say that a few days ago, but after everything's done, it really feels like it was easy, and especially after starting 11th. हाँ, आसान है, सही में आसान है. मतलब ऑब्वियसली जब तुम 10th कर रहे होगे तो तुम्हें बिल्कुल नहीं लगेगा, तुम्हें लगेगा इट इज़ रियली हार्ड, एंड दैट इज़ ओके बिकॉज सबको लगता है. अब लाइक मैं 11th में हूँ, अभी मुझे 11th हार्ड लगेगी, फिर जब मैं 12th में चली जाऊँगी तो मैं सोचूँगी नहीं 11th तो आसान थी. दैट इज़ अ थिंग, बट इट हैपन्स विद एवरीवन. सो अगर तुम्हें टफ लग रही है तो कोई बात नहीं, तुम्हें बाद में नहीं लगेगी. केमिस्ट्री 10th की हार्ड, किसने बोला तुम ऐसा? देयर इज़ नो सच थिंग. केमिस्ट्री 10th की काफ़ी इजी थी. लाइक 8th की केमिस्ट्री ही 10th की केमिस्ट्री है विद सम एडवांस थिंग्स, और मुश्किल उसमें कुछ नहीं है, बस एक्टिविटीज़ याद कर लेना. मोस्ट पेपर वहीं से आता है. NCERT को अच्छे से पढ़ लो. केमिस्ट्री बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, और इसलिए हो सकता है मुझे इसलिए हार्ड नहीं लगती बिकॉज केमिस्ट्री इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट. सो बट ओवरऑल इट वॉज रियली ईजी. So my age is 15 years old right now. I'm 15 and a half year. Like in April, I am 15 and a half year old. I was born in 2009. So by the end of this year, I will turn 16. So I live in India, New Delhi. My percentage in 9th was, I guess 90% or something. I'll just put it here. I don't remember. I guess it was 90%. After a lot of hard work, I got 90%. मतलब देयर वाज दिस मॉक टेस्ट इन स्कूल, एंड उसमें मेरे मार्क्स बहुत बुरे आए थे. देन आई रियलाइज कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, एंड
एंड देन काफ़ी मेहनत करने के बाद बड़ी मुश्किल से 9th में मेरा आई गेस 90% आया था। और फेवरेट आज तक कभी मतलब लाइक अभी तक मैंने कभी तक ऑब्वियस नहीं करा तो शोभित भैया, क्योंकि शोभित भैया की वीडियोस मैं 8th में भी देखती थी, 9th में मैं उनके नोट्स भी देखे एंड देन मुझे 10th में पता चला वाओ शोभित भैया मैथ्स पढ़ाते हैं, तो आई वाज लाइक कि हाँ इस पढ़ेंगे एंड ही इज़ ऑब्वियसली माई फेवरेट टीचर बिकॉज मुझे मैथ्स भी पसंद है एंड देन शोभित भैया का पढ़ाने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद है एंड अगेन इज टीचिंग अस फॉर फ्री, so that is why Shobhit Bhaiya is my favorite teacher. And second would be Digraj sir and third would be Prashant Bhaiya, but I love all of them, but this is the series wise because I only started studying from Prashant Bhaiya during boards, तो कनेक्शन लाइक मुझे टीचर्स फेवरेट टाइम की वजह से है। दिगराज सर से मैं 10th से पढ़ी हूँ, शोभित भैया की वीडियोज़ मैं 8th से देख रही हूँ एंड प्रशांत भैया की वीडियोज़ देखते हुए मुझे लाइक 2-3 महीने हुए हैं, बट ही इज़ एन अमेजिंग टीचर। मेरा बर्थडे होता है 26th of October। Yes, I do watch anime and my favorite anime is Attack on Titan and my favorite artist is Isayama. मेरी एडिटिंग सीखने की स्टोरी इज़ लाइक वेरी डिफरेंट। मैंने एडिटिंग कहीं से सीखी नहीं थी, आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग एडिटिंग और फिर मुझे धीरे धीरे चीज़ समझ आई, मुझे पता ओह अच्छा इसमें ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं एंड दैट इज़ हाउ आई लर्न टू एडिट एंड प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई हॉबीज़ ऐसे ही लिखना। मैं आई लर्न हाउ टू राइट स्टोरीज लाइक दैट, आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग। मुझे कभी भी ये नहीं था कि फर्स्ट आई नीड टू बी परफेक्ट फिर मैं करूँगी, आई जस्ट लाइक कि करो भाई एंड देन आई जस्ट लर्न विद टाइम विद एक्सपीरियंस विद मिस्टेक्स एवरीथिंग and most of my things are like this. I learned art this way, I learned writing this way, I learned editing this way, I learned sports this way, everything. So the stories, how many stories I've written, that is a big question. I have written over 100 short stories and novels. This is my 14th novel, the one I'm writing right now, 48 Hours to Midnight, which I hope this would be the one I am actually going to publish. That happens every time. I think this is the novel I'm publishing, but let's see if that happens. I would be sure to update everything with you guys. Right now I'm writing the 4th chapter and I did get it out on Wattpad. So I started writing back when I was in 5th grade, I guess. Yeah, I was 10 years old and that is when I started writing. It's been 6 years, approximately 6 years. I was somewhere between 9 to 10 and I read this novel by Louise May Alcott, this Little Woman, that was part of our chapter and that is when I fell in love with reading and writing. I was like kitna interesting hai kaam. I was also there and my first novel was something called Huger Sisters. It was about 15 siblings. Exactly, there were 15 siblings in that story and it was about their everyday life, but that was the first story I ever wrote and the latest one is 48 Hours to Midnight. Yes, I do sports. I am in my school's throwball and handball team and we got gold medal in throwball for 2 years consecutive and silver medal in handball last year. There I like cricket, badminton, football and basketball. About time management, board exams में time manage करने के लिए I practiced sample papers and timer के साथ, so I could understand कि कितना टाइम मुझे किस चीज़ में लग रहा है एंड देन आई मेड श्योर कि पेपर 2.5 hours में हो जाए। ऑलवेज़ मेक श्योर कि पेपर तुम्हारा 2.5 hours में हो जाए ताकि तुम बचे हुए टाइम में ना उसको रिवाइज़ कर सको। मार्जिन अगर तुम आधे घंटे कम की लेके चलोगे तब हो जाएगा एंड मैथ्स के पेपर में ये मार्जिन रखने के बाद भी मेरा पेपर लास्ट मोमेंट तक ख़राब हो गया क्योंकि लास्ट टाइम पे मेरा केस स्टडी रह गई थी, 10 minutes रह गए थे और मेरी पूरी केस स्टडी रह गई थी तीनों एंड उसकी वजह से मेरा लास्ट वाली केस स्टडी का क्वेश्चन भी गड़बड़ हो गया था। सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस सैम्पल पेपर विद टाइम सेट कर तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो फिर वो तुम्हें बेटर हेल्प करेगा। और दूसरी बात, पहले से सोच कर जाओ कि तुम्हें कितना टाइम किस चीज़ को देना है और एक एनालॉग वॉच लेकर जाना। डिजिटल वॉचेज़ अलाउड नहीं होती, वो ले लेंगे, वहाँ पर क्लॉक होती है, बट एनालॉग वॉच होगी तो ज़्यादा ही लाइक एनालॉग वॉच ये होती है अगर तुम्हें समझते हैं जिसमें डिजिट्स, मतलब डिजिटल वॉच नहीं। हाँ, स्मार्ट वॉच तो मना होती है, डिजिटल वॉच भी मना है, तो एनालॉग वॉच ही लेकर जाना। काम एंड फोकस रहने के लिए मैं बोर्ड एग्ज़ाम से क्या करती थी, देखो मैं एक पानी की बॉटल लेकर जाती थी एंड एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले मैं रिलैक्स करती थी एंड जो भी तुम प्रे करते हो, तुम मैं मुस्लिम हूँ तो मैं अपनी दुआ पढ़ती थी। लाइक आई यूज्ड टू प्रे while sitting in the exam hall, then I would take the sip of water, I would take a sip of water और वो बॉटल मेरे साथ रहती थी तो मैं उससे थोड़ा सा लाइक काफ़ी नहीं थोड़ा सा पानी पीती थी, टेक अ डीप ब्रेथ, एक अच्छे से सांस लो और उसके बाद जस्ट गेट दिस पेपर स्टार्टेड।
अब पेपर के बीच में अगर इससे कुछ होता है तो जस्ट ड्रिंक वाटर, दैट इज़ द मेन थिंग। आई डिड दैट एंड आई वॉज काम थ्रू आउट द पेपर। बस मैथ्स के पेपर में घबरा गई थी लास्ट मोमेंट पे। वॉट डिड आई लर्न इन बोर्ड एग्जाम, दिस वन इज़ लाइक द बेस्ट थिंग आई लर्न ऑल टिल नाउ। सो बोर्ड एग्ज़ाम्स में मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ सीखी, वो है कि अगर तुम मेहनत करोगे ना तो रिजल्ट डजंट मैटर। इट्स नॉट अबाउट द रिजल्ट, इट्स अबाउट द हार्ड वर्क। और ये समझना मुझे काफ़ी मतलब लाइक टोटल 10 साल लगे। इससे पहले आज तक आई वॉज लाइक इट इज़ ऑल अबाउट द रिजल्ट, आई डोंट केयर कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ, मैं रट लूँगी बट मुझे रिजल्ट चाहिए। बट नाउ आई रियलाइज़ कि इट्स नॉट अबाउट द रिजल्ट, तुम्हें मेहनत करनी आ गई, दैट इज़ द थिंग। बट हाँ, रिजल्ट से मुझे अभी भी मतलब है, बट आई एम लाइक प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने इतनी मेहनत कर ली एंड आई एम सेटिस्फाइड विद द हार्ड वर्क। देखो वैसे तो मेरी बहुत बुरी आदत है घर आकर सारे आंसर्स चेक करना, पेपर डिस्कस करना अपने दोस्तों से, बट बोर्ड एग्ज़ाम से मैंने ये बिल्कुल नहीं करा और मैं बहुत खुश हूँ। बिकॉज मुझे खुद जितना पता है कि मेरा जो गलत हुआ है दैट इज़ द थिंग, और वो मुझे जितना खुद पता है कि मैंने गलत करा है दैट इज़ ओके। बट तुम अपने दोस्तों से डिस्कस करोगे, क्या पता उनका गलत हो और तुम्हारा सही हो, बट तुम डिमोटिवेट हो जाओ इस बात से कि मेरा पेपर ख़राब हो गया। तो डोंट, अगर तुम गूगल पर सर्च करना चाहते हो आंसर कर सकते हो, बट देखो पेपर तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं जब, लेकिन तुम्हारा टाइम हो जाए उसके चक्कर में अपना नया पेपर मत ख़राब करना। अगर लेकिन तुम्हें भरोसा है कि तुम उससे सिर्फ फ़ायदा करोगे तो तुम खोल उसका आंसर देख सकते हो तुमने क्या गलतियाँ करी हैं। बट अगर तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारा आंसर गलत निकला तो तुम डिमोटिवेट हो जाओगे, आगे नहीं पढ़ पाओगे, तो ऐसा मत करना प्लीज़। एग्ज़ाम स्ट्रेस और प्रेशर कैसे हैंडल करो, नहीं करा। एग्ज़ाम स्ट्रेस और प्रेशर वैसे वो उसका कुछ कर नहीं सकते, आई डोंट थिंक कि उसको हैंडल कर सकते हैं। और मुझे ऐसे ज़्यादा प्रेशर वैसे लगा था, बट आई वुड से कि बी कॉन्फिडेंट और अपने ऊपर भरोसा रखो एक बार के लिए, एंड दैट इज़ द ओनली वे यू कैन काउंटर दैट। बट मैं खुद कहूँगी इट इज़ ओके टू फील दैट प्रेशर, इट इज़ ओके टू फील दैट स्ट्रेस, क्योंकि मैंने भी फील करा था। एंड उसके ये मतलब नहीं कि तुम हराओ, बट अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो एंड दैट इज़ गोना बी गुड। हाँ, बट लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस और प्रेशर मत लेना, वरना पेपर में तुम्हारी गड़बड़ हो जाएगी। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, नो दैट यू कैन डू। और ये वाली वीडियोज़ जो होती है ना, इसको प्लीज़ देख लेना, इतना सेटिस्फैक्शन। द वन थिंग दैट आई डिड दैट बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस, दैट मेड मी फील एट ईज, वर दीज वीडियोज़ बाय शोभित भैया दिगराज सर वर अमेजिंग। जस्ट सुबह को एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको सुन लो, यू विल हैव अ फीलिंग, और इनको भरोसा करो, यू विल हैव द फीलिंग ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस कि तुम कर सकते हो। माई फेवरेट सॉन्ग आई वुड से इंग्लिश में अभी जो है लेबर बाय पैरिस पलोमा, और यूजुअली वैसे मेरा फेवरेट हार्ट अटैक है बाय डेमी लोमोव, आई गेस जो भी इसका नाम है डेमी। और हिंदी सॉन्ग्स में आई वुड से माई फेवरेट राइट नाउ, नॉट हिंदी, इट्स उर्दू, माई फेवरेट सॉन्ग इज़ दिस, इज़ आशिक तेरा बाय सोहेल सेन और someone that is really trending right now, so that is fine. That is all for today's video. Thank you so much for all these questions and thank you so much for all the support you guys gave me. I'll see you again in the next video. Till then, bye bye.